नमस्कार। मैं अजीत यादव आप सभी साथियों के बीच एक बार फिर से आया हूं। जैसा कि मेरे साथी सभी सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जितने भी मित्र बंधु जुड़े हुए हैं, जैसे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या अन्य जो साधन हैं, वहाँ पे जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, इन सभी साथियों से हमारी जो कम्युनिकेशन होती है डेली बेसिस पे, जो हमारी बातचीत होती है, उसके बेस पे हमारे साथियों से निवेदन हुआ था, साथियों ने निवेदन किया था। और जो देश के ताज़ातरीन हालात हैं उस पे हमारी जो परिचर्चा चल रही है देश भर में, उसी के बारे में मेरे मित्रों ने जो मेरा मंतव्य जानना चाहा था, और किसी साथी ने हमें ये भी बोला था कॉल करके कि इसके ऊपर एक वीडियो आनी चाहिए। तो मैं सभी साथियों से बताना चाहता हूँ कि जो मेरा बेसिक काम है लॉ से रिलेटेड है। मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ। तो हम लोग ज़्यादातर जो कानूनी चीज़ें हैं, जो कानूनी बिंदु हैं, संवैधानिक चीज़ें हैं जो देश दुनिया में चल रही होती है, नए परिवर्तन होते हैं और बहुत सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन बदलती रहती है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन being a sincere and responsible citizen of this country, we can't avoid whatever is going to the our society. So at the point in this situation, after 4th June, when the Lok Sabha results came, इतना भयंकर एक भूचाल सा आया हुआ है हमारे देश के राजनीति को लेके, और खास करके जो अयोध्या वाली सीट है वहाँ पे समाजवादी पार्टी की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। उसको लेके वहाँ के स्थानीय जो वोटर्स हैं उनको इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। दे पीपुल आर ऑल्सो बिलोंग्स टू इंडिया, दे आर प्राउड टू हिंदू, they are, no one claim that they are not a Hindu, but the followers of Bharatiya Janata Party are treating them very miserably. They are trying to prove that they are not an Indian citizen or they are not a Hindu. Because why? Because they don't voted to who is supported by Bharatiya Janata Party, BJP. So friends, this is not the first time while some special group of supporters of Bharatiya Janata Party are boycotting Hindus of Uttar Pradesh. It's a natural trends of Bharatiya Janata Party supporters who are always boycotting some peoples, like they always boycott the Muslim shops. They are saying that don't buy anything to Muslim shopkeepers, or they always trying to say that if some movies come against to the ideology of Bharatiya Janata Party, then they push people that don't go to a cinema hall and watch the movie of the particular director. So in this critical situation, this is not a right situation, this is not a healthy message for the developed society. So my friend, this is the very bad situation for the country, and we must to try to understand that what is the fundamental rights of people, what wrong with this kind of people. The what constitution says, the constitution of India give permits a right to the every citizen to vote according to their choice, to whatever the people they like, whatever political ideology they like, whatever the political party they like, they can vote and they can support, they can even fight election. But the as after 2014, when Modi came in the power, the social media, especially the group which is supported by the political agenda of Rashtriya Swayam Sevak Sangh, is very bad. They are always pushing people to push or vote support only to the agenda of BJP. So whatever the result came of Ayodhya, the people of local people of Ayodhya
voted in the favor of Samajwadi Party. Samajwadi Party candidate win by the higher margin. But while result came, the people like supporter of Bharatiya Janata Party, IT cell, and others, they try to abuse. They start abusing to the voters of Samajwadi Party. They try to abusing local voters of Ayodhya. They try to just create a message, forward a message to everyone that don't. If you visit Ayodhya Ram Mandir temple, don't buy anything from local shopkeepers. So this is very unhealthy trend for the Indian parliamentary system or our democratic system. We are living in a republican country. Our constitution, we are run by, we head by, we guide by everything. The source of our law, the source of our lineage style, everything is just taken by the constitution, just controlled by the constitution. So the people of Ayodhya have also, and at last I request the Supreme Court of India, I request Honorable High Court of Allahabad, I request Honorable District Magistrate of Ayodhya, Chief Election Commissioner of India, and all the security agencies which are responsible to maintain the law and orders. I request the person, all the administrative staff, all the administrative department to control, to watch and regulate whatever the message forwarding and being published on the social media platform like WhatsApp, Facebook and Insta, YouTube. ये इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. हमारे देश का ट्रेंड, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो हमारी एक मिसाल रही है, हमारा एक परंपरा है, आज भी कायम है. और ये जिस तरीके का ये डरावना जो मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है कि मुस्लिम चीज़ों से, दुकानदारों से सामान नहीं खरीदना है और अयोध्या के हिंदुओं से दुकान नहीं खरीदना और सामान नहीं खरीदना, तो दिस इज़ वेरी अनहेल्दी ट्रेंड फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी. And we, the people of India, are proud to be a democratic country, और we are very proud to be Republican. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, सबको समानता का, एकता का अधिकार देता है. और इस तरीके से किसी व्यक्ति के, एक व्यक्ति के जीत और हार पे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के जीत और हार पे वहाँ के वोटर्स को, सपोर्टर को, स्थानीय लोगों को इस तरीके से एंटी हिंदू बताना, नॉन हिंदू बताना और उनको डिसऑनेस्ट, बेईमान, चोर, लालची और इस तरीके का शब्दों का प्रयोग करना खुलेआम सोशल मीडिया पे, ये बहुत ख़तरनाक है, डेंजरस है फॉर दिस रिपब्लिकन कंट्री लाइक अस. तो मेरा भारत के सुप्रीम कोर्ट से, जो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश के जो हाई कोर्ट हैं उनसे, भारत के चुनाव आयोग से और जितने भी ये हमारी प्रशासन के जो भी इकाई हैं, सबसे निवेदन रहेगा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की जो चीज़ें जो वायरल हो रही, जो चल रही हैं पोस्ट, इस पे आप लोग रेगुलेट करें, कंट्रोल करें और जो भी इस तरह की चीज़ों का प्रसारण कर रहा है, उसको फॉरवर्ड कर रहा है, उसको पोस्ट कर रहा है, इस तरह की चीज़ों का, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमारे लोकतंत्र की मजबूती बरकरार रहे, लोगों की आस्था बरकरार रहे और लोग निर्भीक होकर अपने चॉइस के जनता का चुनाव कर सकें, जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सकें, अपने चॉइस की पार्टी को वोट और सपोर्ट करके समर्थन कर सकें. साथ में मेरे जो भी साथी हैं, जो व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन रहेगा कि कभी ये हिंदू मुस्लिम, कभी ये पार्टी पॉलिटिक्स और कभी किसी को ये जाति का, धर्म का और उसकी ईमानदार होने का, नहीं होने का, देशभक्त होने का, नहीं होने का, ये सर्टिफिकेट आप देने का प्रयास ना करें. और इस तरीके का कोई भी मैसेज आपके पास आता है तो वो यथोचित उसका जवाब दीजिए, रिप्लाई कीजिए उसको. और इस तरीके के समाज में जो वैमनस्य बढ़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो आपसी एकता और भाईचारे को खंडित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मेरे व्यक्तिगत जो भी साथी हैं, विशेष रूप से जो युवा साथी हैं,
उनसे तो स्पेशल निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल इन चीज़ों का समर्थन ना करें और देश की राजनीतिक और सामाजिक जो एकता है, समरसता है, इसको बिल्कुल बनाए रखें, इस पे नज़र रखें। और हम लोग हमेशा इस सामाजिक चीज़ों पे, राजनीतिक और ख़ास करके कानून संबंधित विषयों पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप हमारे मैसेज को अपने साथियों के साथ फॉरवर्ड कीजिए। और इस जैसे ये जो हमारा विषय चल रहा है, इसके अलावा अगर आप हम लोग अब किसी अन्य विषय पे और किसी अन्य टॉपिक पे अगर हम लोग चर्चा करना चाहें, आप लोग चर्चा करना चाहें, तो ज़रूर अपनी राय हमें अपने इस कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपके बीच में अपने मंतव्य को रखें। फिलहाल के लिए आप सभी साथियों से लेते हैं विदा और मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।